Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. Today's lecture is on the topic of fertilization. So, if you see this topic in your syllabus, you'll find that you need to understand the mechanism of fertilization first of all, how fertilization happens, and then there is something called the recognition of egg and sperm towards each other. Recognition, right? How that occurs. And finally, there are two important processes during the fertilization event, which is important. First is the acrosome reaction, and second one is the cortical granule reaction. So these are some things which we are going to discuss in this lecture. So if you talk about fertilization, what is it? Fertilization means sperm basically finds the egg and it binds to the egg through some kind of receptor. First of all, the first task is finding the egg. How sperm finds the egg, we'll discuss that. And then sperm binds to the egg basically with the help of the some soluble receptors or some membrane binding receptor that we'll discuss, right? Then when sperm and egg basically binds to each other, there is fusion of their membrane. This fusion basically makes the formation of one thing called zygote, right? So that's how the fertilization basically occurs. So we'll discuss both the mechanism of the fertilization and eventually what happens, right? Acrosome reaction and cortical granule reaction, these are very very important. One of these reaction occurs during fertilization event and other happen just immediately after fertilization. So let's get started. First of all, this is human sperm and this is human ovum. If you see human ovum, you'll see corona radiata, then it is followed by zona pellucida, and then there is plasma membrane, and then there are some cortical granules which we'll talk about later. And this is human sperm. But for today, we are not going to talk about human based fertilization events. We are going to talk about the fertilization in sea urchin egg, right? If you see, this is the picture of the sea urchin egg. So there is jelly coat, there is no corona radiata. तो basically corona radiata and jelly coat जो है ये दोनों एक दूसरे के आप कह लीजिए सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं. एंड देन देर इज़ वाइटलिन एनवेलप. वाइटलिन एनवेलप इज इन सी अर्चन इज वेरी वेरी सिमिलर टू द जोना पेलुसिडा of the mammalian egg, right? And there is egg plasma membrane, and finally there is a female pronucleus. Now what happens in case of sea urchin, because echinoderm dermata की बात कर रहे हैं, they are the aquatic organism. तो aquatic organism में क्या होता है कि they release their sperm, है ना? सो दे रिलीज देयर स्पर्म इन वाटर इटसेल्फ. अब ऐसा तो नहीं है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में रिलीज करने वाले हैं, तो दे रिलीज देयर स्पर्म इन वाटर. नाउ व्हाट हैपन्स, स्पर्म्स आर a lot in number and they need to find the egg, right? Egg is also released in the water because in sea urchin there is external fertilization. In case of mammal, the fertilization is internal. The key differences I'll be explaining later on. First we'll just focus on sea urchin. So in case of sea urchin, this two membrane, Vitelline envelope and the external jelly coat, this is very very important, right? First thing is the approach of the sperm or spermatozoa to egg. कि स्पर्म जो है एग तक पहुंचेगा कैसे, राइट? तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एग रिलीजेस सम सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ओके, और वो जो है अट्रैक्टेंट की तरह काम करेंगे एंड स्पर्म विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स. फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट. देन जो स्पर्म है, वेन एवर इट फाइंड्स द एग, व्हाट हैपन्स, सो देर आर सीरीज ऑफ इवेंट्स विच टेक प्लेस, राइट? एक एक करके हम वो इवेंट्स को ब्रेक डाउन करेंगे. द फर्स्ट थिंग इज स्पर्म टचेज द एग जेली. एज सुन एज स्पर्म टचेज द एग जेली, द स्पर्म में क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन विल बी ट्रिगर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू में देखेंगे एक्रोसोम रिएक्शन ट्रिगर हो जाएगा जैसे ही स्पर्म हिट्स दी एग जेली. वाई? बिकॉज जो जेली कोट है उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम चाहिए वो एक्रोसोम के पास है, राइट? सेकेंडली, there are protein which are present on the sperm head which will bind to the receptor which are present on the egg membrane, right? अब egg की कौन सी membrane? Vitelline envelope के पास वो क्या है, receptors है, ओके. तो ये कैसे होगा? बिकॉज जो मेम्ब्रेन है, अभी तक हमने एक्रोसोम जब रिएक्शन किया ना, तो एक्रोसोम तो बाहर आ गया, उसके बाद जो मेम्ब्रेन है वो एक्सपोज होगी. तो वहाँ से हम देखेंगे वो एक्सपोजर के दौरान देर आर सम मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्पर्म हेड.
and those molecules have their receptor on egg membrane which is Whiteley envelope, राइट. जब इनकी बाइंडिंग हो जाएगी दैट विल इंश्योर कि हाँ जी ये स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म ही है. ये भी ध्यान रखेंगे बिकॉज स्पीसीज स्पेसिफिक अगर स्पर्म नहीं होगा ना तो बाइंडिंग हो नहीं पाएगी, राइट. और फ्यूजन उसके बाद लेटर ऑन होगा. तो बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग इज देयर आर इवेंट्स विच विल लीड टू फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म. ऐसा नहीं है कि एकदम से एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाएगा. नो नो, फर्स्ट स्पर्म विल कॉन्टैक्ट द जेली लेयर विथ दिस जेली कोट. ठीक है. सेकेंडली अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे केस में क्या होगा, द स्पर्म विल कॉन्टैक्ट द कोरोना रेडिएटा फर्स्ट. ठीक है. देन देर इज एक्रोसोम रिएक्शन. दीज आर द की इवेंट्स. Then there is digestion of the jelly layer with the help of the acrosome enzyme. Finally, there is binding to the Whiteley envelope. And lastly, there is fusion of the acrosomal process membrane and the egg membrane. Basically, sperm का जो plasma membrane है और egg का plasma membrane है दोनों का fusion हो जाएगा and that is it. मतलब that wind up the fertilization event. Now, एक एक करके इन जो पॉइंट्स को हैं हम थोड़ा समझेंगे. देखिए फर्स्ट थिंग इज़ फर्स्ट कि स्पर्म का अट्रैक्शन होना है वो मैंने आपको बता दिया. देयर आर सम अट्रैक्टेंट्स which are soluble molecule released by the egg. So that means egg basically attracts sperm towards itself, isn't it? And secondly, there is species specific sperm activation. ध्यान रखिएगा दोनों प्रोसेस चाहे अट्रैक्शन है चाहे एक्टिवेशन है बोथ आर स्पीसीज स्पेसिफिक. ठीक है. बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव बैरियर. सेम स्पीसीज का स्पर्म ही उसी स्पीसीज के एग को फर्टिलाइज कर सकता है. ये इंश्योर करने के लिए ही ये दोनों स्टेप यहाँ पे होते हैं. ठीक है. सो रिमेंबर दैट. तो फर्स्ट इज द स्पर्म अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सम केमिकल्स आर इन्वॉल्व, इजंट इट? आई एम टेलिंग यू देर आर सम सॉल्युबल केमिकल्स विच आर अट्रैक्टिंग स्पर्म टुवर्ड्स इटसेल्फ. तो दिस इज कॉल्ड कीमोटेक्सिस. व्हाट इज कीमोटेक्सिस? कि कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं. टैक्टिक क्या होता है? मोबिलिटी बेसिकली, है ना. तो स्पर्म को अपनी तरफ मूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, वो सिग्नल दे रहे हैं. सो देयर आर कीमोटैक्टिक मॉलिक्यूल्स विच आर डिफरेंट इवन इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज. ऐसा नहीं है कि अगर दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड है तो उनके कीमोटैक्टिक जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सिमिलर होंगे. दैट इज़ वाई इट इज़ दिस रिएक्शन इज स्पेसिफिक, वेरी वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज, राइट. अगर हम सी अर्चिन की बात करें, स्पर्म मोटिलिटी इज रिक्वायर्ड ओनली आफ्टर द स्पर्म्स आर स्पॉनिंग. क्या होता है कि जैसे सी अर्चिन है वो मरीन एनवायरनमेंट में अपने स्पर्म को रिलीज़ करेगा, राइट, एक पर्टिकुलर टाइम पे, दैट इज स्पॉनिंग. तो एक बार वो रिलीज़ करेगा ओनली देन स्पर्म विल बी मोटाइल. एंड एज लॉन्ग एज स्पर्म सेल्स आर इन द टेस्टिस दे कैन नॉट मूव. वाई? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. As long as the sperm cells are in testes, they cannot move because their internal pH is keeping low. जो pH होता है testes का that is low, 7.2 तक है. ठीक है. By high concentration of CO2 in their gonads. This is very very important that you need to understand. और जैसे ही sperm को बाहर रिलीज किया जाएगा there will be change in pH and then sperm will acquire the motility. ठीक है. ये ध्यान रखेंगे. अभी हावर वन स्पर्म आर स्पॉन्ड इनटू सी वाटर, देयर पीएच इज एलिवेटेड. कितना हो जाएगा? 7.6. देयर इज एलिवेशन ऑफ 0.4 एंड दिस दैट विल रिजल्ट इन द एक्टिवेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड डाइनिन. डाइनिन एटीपीएस. डाइनिन क्या है? डाइनिन इज अ मोटर प्रोटीन. तो इसकी वजह से क्या होगा? एक्टिवेशन हो जाएगा. और ATPase क्या करता है? स्प्लिटिंग ऑफ ATP विल प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द फ्लैजिला टू वेव. तो बेसिकली व्हाट हैपन्स कि सी अर्चिन में स्पर्म जब तक टेस्टिस के अंदर है द pH इज़ नॉट एग्जैक्टली व्हाट इट शुड बी. 7.2 है विच इज़ लो. जैसे ही वो बाहर स्पॉन करके रिलीज हो जाएगा pH विल बी 7.6. उसकी वजह से एक मोटर प्रोटीन है दैट इज़ कॉल्ड डाइनिन, ATPase. देखिए मोटर प्रोटीन डाइनिन है, ATPase क्या है? एंजाइम है. ठीक है. तो वो ATP को स्प्लिट करेगा. ATPase क्या करते हैं? ATP को कन्वर्ट करते हैं ADP प्लस PI में. ठीक है. तो ये एनर्जी रिलीज होगी और इस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा फ्लैजिला के थ्रू. स्पर्म के पास फ्लैजिला होता है ना, तो फ्लैजिला यूज़ करेगा, वेव करेगा और उसकी वजह से क्या होगा? मूवमेंट हो जाएगी. ठीक है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म एक्टिवेशन, तो हाउ इट हैपन्स? तो एबिलिटी ऑफ द स्पर्म डज, जो मूवमेंट की एबिलिटी है, इट डज नॉट प्रोवाइड द स्पर्म विद अ डायरेक्शन. ये तो है कि स्पर्म मूव करना शुरू कर गया, बट हाउ द स्पर्म इज मूविंग टुवर्ड्स द एग ओनली, राइट. तो अकाइनोडर्मेट के केस में जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय स्मॉल कीमोटैक्टिक पेप्टाइड्स एंड दीज आर कॉल्ड स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड्स, सैप्स. ठीक है जी. स्पर्म एक्टिवेटिंग पेप्टाइड जिनको कहते हैं. ऐसा ही एक पेप्टाइड है विच इज़ वेरी वेल नोन, कॉल्ड रीसेक्ट. रीसेक्ट इज अ स्पर्म
activating peptide. It is a 14 amino acid peptide which basically has been isolated from the egg jelly. Okay, तो sea urchin जो है अर्बेसिया पंक्टुएलेट, इनके जो एग जेली है उससे इसको आइसोलेट किया गया है. तो रीसेक्ट क्या है, स्पीसीज स्पेसिफिक है, ओनली फॉर दिस स्पीसीज इट वर्क. ठीक है, इट डज नॉट अट्रैक्ट द स्पर्म ऑफ द अदर सी अर्चिन. सो दिस इज द अट्रैक्शन मॉलिक्यूल फॉर दिस पर्टिकुलर स्पीसीज. ठीक है, तो इसका जो स्पर्म है दे हैव रिसेप्टर इन देयर सेल मेम्ब्रेन दैट बाइंड्स टू द रीसेक्ट. तो रीसेक्ट किससे आया, एग का जो आपका एग जेली है उसके पास है रीसेक्ट, और जो स्पर्म है उसके पास इसके लिए रिसेप्टर है. ठीक है, तो दैट्स हाउ इट बेसिकली एक्टिवेट्स बोथ. तो वेन एवर द स्पर्म बाइंड्स टू द रीसेक्ट, स्पर्म का जो रिसेप्टर है व्हेन इट रीचेज द एग जेली इट विल गोइंग टू बाइंड टू द रीसेक्ट. इट विल एक्टिवेट समथिंग कॉल्ड एन एंजाइम दैट इज ग्वानिलाइल साइक्लेज. ग्वानिलाइल साइक्लेज. ठीक है जी, तो ये साइटोप्लाज्मिक साइट पे होता है और इससे सीरीज ऑफ इवेंट जो है वो आगे एक्टिवेट हो जाएंगे. होगा क्या, जैसे ही ग्वानिलाइल साइक्लेज ये एक्टिवेट होगा, ये स्पर्म सेल को क्या कहेगा कि बहुत ज़्यादा साइक्लिक जीएमपी को प्रोड्यूस कीजिए. नाउ व्हाट हैपन्स इज देयर इज जीटीपी. जीटीपी को कन्वर्ट किया जाता है साइक्लिक जीएमपी में, एंड दैट इज़ व्हाट इज ग्वानिलाइल साइक्लेज इज डूइंग ओवर हियर, राइट. और जैसे ही ये साइक्लिक जो आपका जीएमपी है ये इंक्रीज होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन, इट विल एक्टिवेट कैल्शियम चैनल्स इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द स्पर्म. तो स्पर्म की टेल में क्या है, देयर आर कैल्शियम चैनल्स, उन कैल्शियम चैनल्स को ये एक्टिवेट कर देगा. सो स्पर्म टेल में क्या होगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होना शुरू हो जाएगा. तो देयर इज कैल्शियम इन्फ्लक्स फ्रॉम सी वाटर इनटू द स्पर्म टेल. और स्पर्म ये स्पेसिफिक है बिकॉज ऑफकोर्स व्हेन द पर्टिकुलर स्पीसीज जिस पे रिसेक्ट वर्क कर सकता है उसके दौरान ही ये हो रहा है ना, कैल्शियम चैनल्स इसीलिए ओपन हो रहे हैं. तो स्पीसीज स्पेसिफिक है ये कैल्शियम चैनल्स, व्हेन दे आर ओपनिंग तो होगा क्या, स्पर्म जो है वो मोटाइल हो जाएगा. ठीक है, तो इंक्रीज इन द साइक्लिक जीएमपी एंड कैल्शियम एक्टिवेट्स बोथ. ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, ये बेसिकली एक्टिवेट करेंगे क्योंकि आपने कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर दिया. इससे होगा क्या, तो दे आर गोइंग टू इंक्रीज माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी जनरेटिंग apparatus and the dynein ATPs. Again, this is for the flagellar movement so that sperm can swim towards the egg. So, if we see it, यहाँ पे देखिए. So, this is a very good diagram or picture representing the same thing. This is resect which is from the egg. अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, रिसेक्ट कैन बी सॉल्युबल, हो सकता है वो रिलीज हो जाए, हो सकता है वो एग जेली पे ही रहे. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन द रिसेक्ट में कह रही हूँ, स्पेशली द मॉलिक्यूल बेस्ड सैप. इट कैन बी रिलीज और इट कैन बी प्रेजेंट ऑन द एग जेली इटसेल्फ. तो रिसेक्ट एग से आपने लिया है एंड दिस इज द स्पर्म सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, अब यहाँ पे यू थिंक दिस इज जीटीपी, दिस इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक जीएमपी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ग्वानिलाइल साइक्लेज, and why it is RGC written, resect guanylyl cyclase, right. GTP is converted into cyclic GMP and it is giving a positive push to this calcium channel, and calcium is being drawn inside the sperm. ठीक है, तो sperm can swim now because this calcium is going to help in generation of the ATP and the dynein ATPase stimulation so that the flagellar movement can happen. Okay, so this is species specific thing. Now as soon as sperm reaches the egg jelly, we know that there is requirement of another reaction that is called the acrosome reaction. Now we'll see what is acrosome reaction of the sperm. So acrosome reaction in sea urchin हम बात कर रहे हैं. So this is initiated when sperm contact the egg jelly, right. contact reset के थ्रू जैसे ही हुआ, तो एक चीज़ देखिए, फर्स्ट जो आपका स्पीसीज स्पेसिफिक बैरियर वो यहीं पे हो गया. दैट मीन्स रिसेक्ट होगा तभी वो उसके साथ अटैच होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं अटैच. इसका मतलब अगर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में नॉन स्पेसिफिक स्पर्म्स भी हैं तो वो एग के साथ बाइंड ही नहीं हो सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड सेकेंडली जब एक्रोसोम रिएक्शन होता है तब देखिए क्या होगा, तो कॉन्टैक्ट में आया तो एक्रोसोम रिएक्शन ट्रिगर हो गया. दिस कॉन्टैक्ट कॉज द एक्सोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स एक्रोसोम वेसिकल. तो एक्रोसोम एक वेसिकल है जिसकी एक्सोसाइटोसिस होगी. एक्सोसाइटोसिस का मतलब क्या है, वो बाहर निकल जाएगा, बेसिकली मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करेगा और अपना मटेरियल जो है वो बाहर रिलीज़ कर देगा. तो अगर ये एग है कि जेली है, यहाँ पे वो मटेरियल आ गया. नाउ ये जो एक्रोसोम वेसिकल है, व्हाट इट हैज़ प्रोटोलिटिक एंजाइम्स एंड
Proteosomes is protein digesting complexes. So it has some enzymes and it has a complex which can digest protein. So these both things together will digest a path through the jelly coat. That means अगर आप दोबारा से वो डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं, सी जैसे ही यहाँ से रिलीज़ होगा तो ये स्पर्म पहले यहाँ था, अभी आगे चला गया ना, क्यों? ये एक पाथ बना रहा है। और वो पाथ बनाया कैसे इसने? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। एंजाइम ने क्या किया? जो जेली है उसको, बेसिकली वो जेली प्रोटीन से ही बनी होती है, तो वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लिया उसने, राइट। वंस द स्पर्म पास्ड थ्रू द एग जेली एंड रीचेज द एग सरफेस, एक्रोजोम जो प्रोसेस है वो अडेयर करेगा टू वाइटलिन एनवेलप। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक्रोजोम प्रोसेस जो है बेसिकली वहाँ से एंजाइम तो रिलीज़ हो गए और उन्होंने क्या किया? एग जेली को डाइजेस्ट भी कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है वाइटलिन एनवेलप के साथ बाइंड करवाना, स्पर्म को टेदर करना है एग के साथ। तो वो भी कैसे होगा? एक्रोजोम जो प्रोसेस है वो अडेयर करेगा सो दैट स्पर्म इज अटैच्ड विद द एग। सी अर्चिन में द एक्रोजोम रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय दिस थिंग दैट इज कॉल्ड सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड्स. So these sulfate containing polysaccharides are present in the egg jelly and they bind to specific receptor which is present directly above the acrosome vesicle. ये ध्यान रखेंगे, acrosome vesicle के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं वो रिसेप्टर जिनसे ये बाइंड करेंगे, ठीक है। और सेल की मेम्ब्रेन पे, स्पर्म सेल जो मेम्ब्रेन है उनके पास वो रिसेप्टर होंगे। तो अगेन acrosome reaction is initiated by this thing. This is sulfate containing polysaccharide which is again present in the egg jelly. Attraction के लिए रिसेक्ट यूज़ किया था और एक्रोजोम रिएक्शन के लिए क्या यूज़ हो रहा है? सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स, ठीक है। दे आर हाईली स्पीसीज स्पेसिफिक, दे आर ऑल्सो स्पीसीज स्पेसिफिक, ओके। नाउ व्हेन दिस सल्फेट कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड विल बाइंड टू द रिसेप्टर जो स्पर्म के ऊपर प्रेजेंट है, तो होगा क्या? रिसेप्टर विल एक्टिवेट 3 स्पर्म मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो 3 तरह के मेम्ब्रेन प्रोटीन हैं जिनको वो स्पर्म की मेम्ब्रेन पे एक्टिवेट कर देंगे। फर्स्ट इज कैल्शियम ट्रांसपोर्ट चैनल, ताकि कैल्शियम जो है वो एंटर करे स्पर्म हेड में। अब हम टेल की बात नहीं कर रहे, एक्रोजोम रिएक्शन हेड के थ्रू होगा तो हेड की बात कर रहे हैं, राइट। तो स्पर्म हेड में कैल्शियम ट्रांसपोर्ट ओपन हो जाएगा सो दैट कैल्शियम enters into the sperm head. Secondly, a sodium hydrogen exchanger is there, ठीक है। तो सोडियम और प्रोटॉन ये पंप है विच पम्प्स सोडियम आयंस इनटू द स्पर्म एज इट पम्प्स हाइड्रोजन आयन आउट। तो ये एक एंटीपोटर है, तो ये हेड के अंदर क्या लेके आएगा? सोडियम को, और बाहर क्या लेके जाएगा? प्रोटॉन को। Third thing, a phospholipase enzyme is also activated that makes another second messenger that is the IP3 phospholipid inositol 1,4,5 trisphosphate, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन में होते हैं तो वहाँ से ये क्या बनाएगा? IP3. So these 3 proteins are basically activate through sulfate polysaccharide which binding to the receptor present on the sperm membrane. IP3 is again able to release some calcium from inside of the sperm. बेसिकली जो एक्रोजोम के अंदर अगर कोई कैल्शियम स्टोर है तो वहाँ से कैल्शियम को रिलीज़ करवा देगा। तो बेसिकली करना क्या है? कैल्शियम का लेवल इंक्रीज़ ही करना है। कैल्शियम जो लेवल है रिलेटिवली अगर आप चेक करेंगे इट इज़ एलिवेटेड, ठीक है। साइटोप्लाज्म में जो है वो उससे ये कैल्शियम लेवल जब एलिवेट होता है यही वो सिग्नल है विच इज़ ट्रिगरिंग द एक्रोजोम मेम्ब्रेन का फ्यूजन। होता क्या है, अगर आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखें तो अगर ये हेड है स्पर्म का और मान लीजिए ये मिडल पीस आ गई, या टेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर एक्रोजोम है, एक्रोजोम ने अगर एक्सोसाइटोसिस करनी है दैट इज एक्रोजोम रिएक्शन, एक्रोजोम नीड टू फ्यूज विद दिस मेम्ब्रेन, इजंट इट। ये फ्यूजन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ कैल्शियम। सो ये सारा तामझाम हमने किस लिए किया? ताकि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो और एक्रोजोम का जो मेम्ब्रेन है वो स्पर्म का जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ जो है फ्यूज़ कर जाए, सो दैट उसके जो आपके एंजाइम है एक्रोजोम के अंदर वो सारे के सारे बाहर निकल जाएं, ठीक है। तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है? सेकेंड पार्ट में एक्रोजोम रिएक्शन में देर इज़ एक्सटेंशन ऑफ द एक्रोजोमल प्रोसेस, क्योंकि आपने एग जेली के थ्रू तो आप पार चले गए। नेक्स्ट पार्ट है आपका वाइटलिन एनवेलप से कॉन्टैक्ट करना। तो देर विल बी एन एक्सटेंशन ऑफ एक्रोजोम प्रोसेस। एन एक्सटेंशन मतलब अगर पहले ऐसा था तो अब ऐसा होगा, पर ये एक्सटेंशन पॉसिबल क्यों है? बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एक्टिन ओवर देयर। दिस ग्लोबुलर एक्टिन इज पॉलीमराइज्ड इनटू एक्टिन फिलामेंट, ओके। ये आप सेल बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो साइटोस्केलेटन का पार्ट है, एक्टिन फिलामेंट जो हैं वो बनेंगे तो उसकी वजह से ये एक्सटेंड हो जाएगा और इसी एक्सटेंशन पे आपके जो है ये कांटेक्ट करने वाला है वाइटलिन एनवेलप के साथ, ठीक है। सो द इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम
is basically important to activate the protein that is rho B in acrosome region and midpiece of the sperm. दोनों साइड पे ये वाला प्रोटीन एक्टिवेट होगा. दिस रो बी इज अ GTP बाइंडिंग प्रोटीन एंड दिस helps in organizing the actin cytoskeleton. Okay, so that the acrosomal process can form. So calcium is important for both. Calcium is there so that acrosome reaction can occur, जिसमें फर्स्ट पार्ट में there is a release of the acrosome vesicle, ताकि एंजाइम बाहर निकले, एग जो जेली है वो डाइजेस्ट हो जाए. दूसरे पार्ट में क्या होगा, एक्टिन जो है दैट इज़ पॉलीमराइज, ताकि एक्सटेंशन हो. तो अभी इसको देखते हैं यहाँ पे. लेट्स सी दिस पिक्चर. सो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए हम बाइंडिंग नहीं देख रहे, देखेंगे आगे कैसे काम करता है. ये एक्रोजोम मेम्ब्रेन है, ये इसके साथ फ्यूज़ करेगा तो एक्रोजोम का मटेरियल बाहर आ गया. ये आपका फर्स्ट पार्ट है. नीचे आपको दिख रहा है साथ में क्या हो रहा है, ग्लोबुलर एक्टिन है. दिस एक्टिन इज टेकिंग अ शेप ऑफ अ फिलामेंट. एक्टिन फिलामेंट बन गया. अब जैसे ये एक्सटेंड होता है ना बाहर की तरफ, ये बाहर को ऐसे निकलेगा, तो देयर इज समथिंग एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस, इजंट इट. दिस इज बाइंडिंग. नाउ व्हाट इज बाइंडिंग? बिकॉज स्पर्म जो हेड है, अब जब ये एक्सटेंड हो चुका है, इट इज़ अबाउट टू मेक कॉन्टैक्ट विद वाइटलिन एनवेलप. सो देर इज समथिंग इन ओवर द स्पर्म हेड दैट इज बाइंडिंग. ये बाइंडिंग ही है जो वाइटलिन एनवेलप के साथ कॉन्टैक्ट करेगा. ठीक है. सो नाउ द फाइनल स्टेप दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ एग्स एक्स्ट्रा सेलुलर कोट. क्योंकि मैंने आपको लास्ट जो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन है उसमें भी मैंने यही बताया है आपको एक क्वेश्चन में कि जोना पैलिसिडा विच इज़ सिमिलर टू दी वाइटलिन एनवेलप, जोना पैलिसिडा इन केस ऑफ मैमल्स, वो भी जो है रिकॉग्निशन में बहुत हेल्प करती है. तो रिकॉग्निशन होता कैसे है, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ. सो व्हेन द स्पर्म हैज़ पेनिट्रेटेड द एग जेली, एग जेली से पेनिट्रेशन हो चुका है, एक्रोजोम प्रोसेस जो है, एक्रोजोम रिएक्शन भी हो चुका है, तभी तो पेनिट्रेशन पॉसिबल हुआ. सॉरी. उसके बाद एक्रोजोम प्रोसेस जो है वो बन चुका है बिकॉज रो बी जो था वो एक्टिवेट हो गया है. नाउ इट कॉन्टैक्ट्स द सरफेस ऑफ द एग. और ये भी एक अनदर स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग इवेंट है. दैट मीन्स एक स्पेसिफिक स्पीसीज का स्पर्म ही बाइंड यहाँ पे कर पाएगा. ठीक है. सो एक्रोजोम प्रोटीन जो हैं वो इस रिकॉग्निशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इनसॉल्युबल प्रोटीन है वो, एंड दैट प्रोटीन इज बाइंडिंग. इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. This is the size of the protein, around 30.500 जो डाल्टन का प्रोटीन है बेसिकली. एंड देयर आर स्पीसीज स्पेसिफिक बाइंडिंग रिसेप्टर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द वाइटलिन एनवेलप. तो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग, ये बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ पे हैं, एग की वाइटलिन एनवेलप पे, और बाइंडिंग उससे बाइंड करेगा. जैसे ही बाइंड करेगा तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो टेदर हो जाएगा. अब स्पर्म जो है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया गया कि हाँ जी ये इसी स्पीसीज का स्पर्म है. So now the sperm recognition is complete and next step is fusion of the egg and sperm cell membrane. Okay? So एक बार फ्यूजन मतलब आपका एक्सोसोम रिएक्शन कंप्लीट हो गया, देन देर इज़ फ्यूजन ऑफ द एग जो है सेल और स्पर्म सेल और एग सेल जो है उनकी मेम्ब्रेन का फ्यूजन होने वाला है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट. जब एग और स्पर्म फ्यूजन होता है तो उसमें भी अगेन जो है पॉलीमराइजेशन है एक्टिन की बेसिकली, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कोन की फॉर्मेशन होती है. एकदम से दोनों न्यूक्लियस पास में नहीं आते, बीच में पहले एक कोन बनता है. ऐसे प्रो न्यूक्लियस होते, यहाँ से फ्यूजन होना है. जैसे एंटर करेगा ना ये फ्यूज़ होके, तो यहाँ पे बेसिकली सेलुलर मूवमेंट है, तो यू सी कि थोड़ा सा उसका रोल होगा. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट एक्टिन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो एक्टिन फ्रॉम गेमीट्स, बोथ गेमीट्स, बीट एग और बीट स्पर्म, forms a connection that widens the cytoplasmic bridge between the egg and sperm. This bridge I am talking about. If this is sperm, this is egg, तो इसमें एक cytoplasmic bridge है, इसको वाइडन करता है और इस के थ्रू ही बेसिकली फ्यूजन होना है. राइट. अब फ्यूजन जो है दिस इज ऑल्सो एन एक्टिव प्रोसेस. इट ऑल्सो रिक्वायर सम प्रोटीन, जैसे कि फ्यूजोजेनिक प्रोटीन इनको बोलते हैं. एंड बाइंडिंग जो है इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ फ्यूजोजेनिक प्रोटीन. ठीक है. बाइंडिंग इज वन ऑफ द फ्यूजोजेनिक प्रोटीन. नाउ लास्टली, तो यहाँ तक यू अंडरस्टैंड कि अगर फ्यूज़ कर गया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दोनों प्रो न्यूक्लियस आपस में जुड़ जाएंगे एंड n+n विल बी 2n. तो बेसिकली यू हैव योर जाइगोट. ठीक है. बट अब ऐसा है कि ऐसा तो नहीं है कि एक ही स्पर्म है एग के अराउंड, देर आर मल्टीपल स्पर्म्स, है ना, न्यूमरस स्पर्म्स आर देयर, बट हमेशा एक एग के साथ एक ही स्पर्म फ्यूज़ होता है विच इज़ नॉर्मल थिंग एंड इट इज़ कॉल्ड मोनोस्पर्मी, isn't it? तो अदर स्पर्म्स आर नॉट एबल टू कंबाइन विद द एग. वाई सो? जैसे अगर आप मोर देन वन स्पर्म का एंट्रेंस की बात करो तो दैट इज़ कॉल्ड पॉलीस्पर्मी.
और इसके बहुत डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज n+n+n आप पूरे का पूरा जेनेटिक मेकअप चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं होता। वाई? बिकॉज देर आर ब्लॉक्स टू दिस थिंग, बिकॉज दिस इज नॉट नॉर्मल। पॉलीस्पर्मी इज नॉट नॉर्मल। पॉलीस्पर्मी क्या होगा? बाइंडिंग ऑफ मोर देन वन स्पर्म टू द एग, राइट? सो देर इज अ फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी, देर इज अ स्लो ब्लॉक। फास्ट ब्लॉक में क्या होता है? जब पॉलीस्पर्मी की बात करते हैं तो फास्ट ब्लॉक में जो आपका पोटेंशियल है, चार्ज है, उसको चेंज कर दिया जाता है। मेम्ब्रेन का अपना एक पोटेंशियल होता है ना, डीपोलराइजेशन अगर आपने पढ़ी हो तो पोटेंशियल चेंज किया जाता है सो दैट चार्ज जैसे ही चेंज हो बाकी स्पर्म जो है वो फॉलो ऑफ कर जाए, एंड दिस इज़ फास्ट, विद इन सेकेंड्स हो जाता है। ये हमारा अभी केस नहीं है, हमें इसको नहीं स्टडी करना है। वी आर इंटरेस्टेड इन स्लो ब्लॉक। स्लो ब्लॉक जो है दिस इज बेसिकली अकम्प्लिश्ड बाय समथिंग कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, एंड इट इज़ ड्यू टू एग। दैट मीन्स एग के साथ जब एक बार स्पर्म कोई फ्यूज़ कर गया, मान लीजिए इस तरह से, तो एग ही डिसाइड करेगा कि अब कोई और स्पर्म नहीं आ सकता। हाउ? क्योंकि एग जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देयर आर सम ग्रेन्यूल्स लाइक इट, राइट? दीज आर कॉल्ड कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स बिकॉज कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये ग्रेन्यूल्स की बात करते हैं। अगर हम सी अर्चिन के केस में देखें तो अराउंड 15,000 कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स यू कैन फाइंड, ठीक है? अबाउट 1 mm डायमीटर में आपको ये सारे मिल जाते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा नंबर में है ये। और करते क्या है? जैसे ही स्पर्म की एंट्री हो जाएगी, एक स्पर्म जब अंदर आ गया तो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स विल फ्यूज विद द एग सेल मेम्ब्रेन। कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एग सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेंगे, अपना कंटेंट एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर रिलीज़ कर देंगे। अब इमीडिएट मेम्ब्रेन के साथ है ना ये, तो बाहर मतलब जहाँ पे आपका वाइटलिन एनवेलप है वहाँ ये अपना कंटेंट रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो देयर कंटेंट इज रिलीज इनटू द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड फाइब्रस मैट ऑफ द वाइटलिन एनवेलप प्रोटीन, राइट? वाइटलिन एनवेलप के बीच में रिलीज़ कर रहे हैं, और बहुत सारे प्रोटीन ये रिलीज़ करते हैं, और इसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीन प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस क्या है? प्रोटीन को तोड़ने वाले। सो दे क्लीव द प्रोटीन पोस्ट द कनेक्शन। तो बेसिकली आप ये सोचिए कि अगर ये एग है और ये इसका वाइटलिन एनवेलप है, तो ये जुड़ा है, इसके बीच में ये रिलीज़ कर रहे हो आप, तो ये ऊपर उठ जाएगा थोड़ा सा, इजंट इट? वाइटलिन एनवेलप जो है, देखिए क्या लिखा है यहाँ, सीरीन प्रोटीएज क्लीव्स द प्रोटीन पोस्ट दैट कनेक्ट द वाइटलिन एनवेलप प्रोटीन टू द एग सेल मेम्ब्रेन। तो वाइटलिन एनवेलप थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो इट क्लिप ऑफ दी बाइंडिंग रिसेप्टर ऑल्सो। अगर बाइंडिंग रिसेप्टर ही नहीं है तो स्पर्म अटैच नहीं हो सकेगा, बिकॉज बाइंडिंग रिसेप्टर कहाँ था? वाइटलिन एनवेलप के साथ, राइट? सो दैट इज हाउ द अदर स्पर्म्स आर बेसिकली शेकन ऑफ, फर्स्ट थिंग। देन और भी कंपोनेंट है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का। तो कंपोनेंट में क्या क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं। जब भी आप कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, वाइटलिन एनवेलप, as soon as the cortical granule reaction start, Weyerhaeuser envelope will be changed into something called fertilization envelope, and this marks this thing कि fertilization हो गई है, ठीक है? fertilization envelope जो है it starts to form at the site of the sperm entry, वहाँ से बनना शुरू होता है, and it continues to expand around the whole egg. For example, ऐसे अगर है, यहाँ से अगर एंट्री हो तो यहाँ से वाइटलिन एनवेलप ऊपर होना शुरू होगा, और ऐसे घूम के पूरे उसकी तरफ ये जो फर्टिलाइजेशन एनवेलप है ये बन जाएगा, ठीक है? एंड दिस प्रोसेस स्टार्ट्स बाय 20 seconds आफ्टर द फर्स्ट स्पर्म अटैचमेंट, एंड इट कंप्लीट्स बाय एटलीस्ट फॉर 1 minute, एंड 1 minute इज अ लॉन्ग टाइम, ओके? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड स्लो ब्लॉक, ओके? जो फास्ट ब्लॉक है जिसमें हम पोटेंशियल चेंज करते हैं वो तो विद इन सेकेंड्स हो जाता है। नाउ द फर्टिलाइजेशन एनवेलप इज एलिवेटेड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन। अब ये एलिवेशन कैसे हुआ? सो दिस एलिवेशन बाय द सेल मेम्ब्रेन इज बाय म्यूकोपॉलीसेकेराइड। दिस इज समथिंग विच इज ऑल्सो रिलीज्ड through cortical granules, ठीक है? So if we talk about mucopolysaccharide, they are also released in the through the cortical granules. उसके मतलब component में से एक है mucopolysaccharide भी. So they are viscous compounds and they absorb water. This is very important. They absorb water and they expand the space between the cell membrane and fertilization envelope. देखिए वाइटलिन एनवेलप जो है वो चेंज हो चुका है फर्टिलाइजेशन एनवेलप में, क्योंकि वो क्लिप ऑफ हो चुका है फ्रॉम द एग मेम्ब्रेन, और फर्टिलाइजेशन एनवेलप और जो आपका मेम्ब्रेन है उसके बीच का स्पेस इंक्रीज कैसे होगा? अगर उसमें वाटर एब्जॉर्ब हो जाए, ठीक है? तो दिस थिंग इज डन बाय द म्यूकोपॉलीसेकेराइड। एक एक करके ये सब समझते हैं, देन आई ऑल्सो शो यू द पिक्चर फॉर इट। देन द फर्टिलाइजेशन एनवेलप इज देन स्टेबलाइज्ड। देखो पहले क्या किया आपने? उसको क्लिप ऑफ किया है। फर्स्ट थिंग इज क्लिपिंग ऑफ the Weyerhaeuser envelope, then converting into fertilization envelope. Second thing is absorbing water in between, okay, so that the space increases, and third thing is stabilizing.
The fertilization envelope is then stabilized by cross-linking the adjacent protein, and the cross-linking adjacent protein through egg-specific enzyme, that is peroxidase enzyme. So third component is the peroxidase enzyme and a transglutaminase released from the cortical granules. The fourth one is the transglutaminase. तो जब क्रॉस लिंकिंग करनी है प्रोटीन्स को तो आपको दो एंजाइम चाहिए, पेरोक्सिडेज एंजाइम एंड ट्रांसग्लूटामिनेज. ये भी कॉर्टिकल ग्रेन्यूल से ही रिलीज होते हैं. और ये क्रॉस लिंकिंग जो है इट विल अलाउ द एग एंड द अर्ली एम्ब्रियो ऑल्सो, इसका और भी फंक्शन है, टू रेजिस्ट शेयर फोर्स ऑफ द ओशन. ओशन में बहुत सारी टाइड चलती हैं, वेव्स चलती हैं, तो उसकी वजह से जो आपका जाइगोट बन रहा है वो ब्रेक ना कर जाए, या एग जो है वो ब्रेक ना कर जाए, अर्ली एम्ब्रियो ब्रेक ना कर जाए, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है जी, तो ये ध्यान रखेंगे. और लास्ट जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल में मिलेगा दैट इज़ हाइलिन. हाइलिन जो है ये कोटिंग बनाएगा अराउंड द एग. एग जो है इट विल एक्सटेंड अलॉन्गेट, एग एक्सटेंड्स इलोंगेटेड माइक्रोविलाई, जिसका जो टिप है विच इज़ अटैच टू द हाइलिन लेयर. बेसिकली आउटर मोस्ट लेयर हाइलिन से बन जाएगी और वहाँ से माइक्रोविलाई जो है वो दैट विल बी अटैच टू द हाइलिन. एंड दिस सपोर्ट, ये सपोर्ट कब करेंगे, जब क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा. पहले जाइगोट एक है, बाद में क्या होगा, मल्टीपल सेल्स बनेंगे, तो ब्लास्टोमेर्स को इकट्ठा रखना है, तो उसमें हाइलिन जो है वो हेल्प करने वाला है. ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन को देखेंगे तो कुछ ऐसा है, जैसे ही स्पर्म ने ये कोन बना लिया, नॉट कोन एक्चुअली एक्सटेंशन, ये एक्रोसोम हेड एक्सटेंशन बना लिया, इट टचेस द वाइटलिन एनवेलप, तो इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि दिस इज माई स्पर्म. अब क्या होना है, अब इसने चेंजेस करने शुरू करने, तो दीज आर द कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. तो ओवर टाइम व्हाट हैपन्स, द ओवर टाइम ये चीज़ दिखा रखी है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल फ्यूज़ करते हैं और अपना कंटेंट रिलीज कर रहे हैं. तो यू कैन सी वाइटलिन एनवेलप पहले यहाँ था, अभी ऊपर चला गया, तो नाउ दिस इज फर्टिलाइजेशन एनवेलप. और बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे वाटर को ड्रॉ किया जा रहा है म्यूकोपॉलीसेकेराइड के थ्रू, और क्रॉस लिंकिंग किस कौन करवा रहा है, आपका ट्रांसग्लूटामिनेज हो गया. ठीक है, एंड देर इज UDX1 ऑल्सो. ये भी अनदर एंजाइम है जो बेसिकली हेल्प करे. अच्छा, UDX1 क्यों हेल्प करेगा, इसका अलग काम है, ये मैं बताती हूँ आपको. पहले हम बात करते हैं सिर्फ ट्रांसग्लूटामिनेज. सो ये है ट्रांसग्लूटामिनेज और एक पेरोक्सिडेज एंजाइम है. ठीक है, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, दिस इज पेरोक्सिडेज एंजाइम. तो ये एग स्पेसिफिक है, ये बेसिकली क्रॉस लिंकिंग करा रहे हैं, राइट. और फर्स्ट आपने ये पढ़ा था CGSP, ये है आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल सीरियन प्रोटीज जो बेसिकली लिंक तोड़ रहा है, सो दैट वाइटलिन एनवेलप इज नॉट कनेक्टेड विद द मेम्ब्रेन इटसेल्फ. एंड लास्टली देर इज समथिंग कॉल्ड UDX1. दिस इज एन एंजाइम जो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसके लिए हेल्पफुल है. ये बेसिकली H2O2 जो है वो चेंज हो रहा है. होता क्या है, जो आपका ये ओवो पेरोक्सिडेज है इसको चाहिए H2O2. ठीक है, तो उसके लिए काम करता है UDX1 जो है, उसके थ्रू ये मूव करेगा. ओके, एंड फाइनली व्हाट हैपन्स इज फर्टिलाइजेशन एनवेलप थिक हो जाएगा बहुत ज़्यादा, बीच में वाटर है और अब कोई भी और स्पर्म जो है वो अटैच नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमने कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन में क्या पढ़ा, एक्सक्यूज मी, कैल्शियम. कैल्शियम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयन, इजंट इट. आपने कैल्शियम जो है उसकी वजह से ही सारी रिएक्शन को स्टार्ट किया है. अब ये क्यों मैं कह रही हूँ, बिकॉज आपको कोई सिग्नल तो चाहिए ना जो कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को कहे कि आप फ्यूज़ हो जाइए. तो वो सिग्नल क्या है, वो सिग्नल कैल्शियम है. जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है द कंसंट्रेशन ऑफ द फ्री कैल्शियम इन द एग साइटोप्लाज्म ऑल्सो इंक्रीजेज greatly, and this high calcium environment is going to trigger the fusion of the cortical granules with the egg cell membrane. एक बार फ्यूजन हो गया, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो हैं वो स्पर्म पॉइंट जहाँ पे भी एंट्री हुई है वहाँ से जो है एक वेव ऑफ रिएक्शन चलाएंगे जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं. इस वेव में क्या होगा, सबसे पहले देयर इज़ सीरिन प्रोटीएस जो ब्रेक करेंगे ताकि एनवेलप ऊपर उठ जाए और उसकी वजह से बाइंडिंग जो है वो अब अटैच नहीं रहेगा. एंड देन व्हाट हैपन्स, यहाँ पे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स आएंगे जो वाटर को इंड्रॉ करेंगे. देन ट्रांसग्लूटामिनेज हो गया आपका, और पेरोक्सिडेजेस ये क्या करेंगे, क्रॉस लिंक बनाएंगे नया, राइट, सो दैट इट इज़ स्टेबलाइज, द फर्टिलाइजेशन एनवेलप इज स्टेबलाइज. तो सी अर्चिन में भी क्या है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, वैसे ही मैमल में भी है, सेम ही केस है. मैमल में भी देर इज राइज इन द कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन एंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन, राइट. तो इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट मीन्स अगर आप सीधा सीधा कैल्शियम इंक्रीज करा दोगे तो भी क्या होगा, जो आपका कॉर्टिकल ग्रेन्यूल रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको मैमल्स का भी बताऊँगी, एक मिनट, सॉरी अबाउट दैट. या सो थोड़ा सा इफ़ यू टॉक अबाउट मैमल्स,
ये तो सी अर्चिन के स्पेसिफिक आपने सारा कर लिया। तो मैमल में जोना पैलिसिडा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे आप वाइटलिन एनवेलप पढ़ रहे हो, यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, जोना पैलिसिडा। तो ध्यान रखिएगा, जोना पैलिसिडा इज़ मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, 3 तरह के यहाँ पे मिलते हैं, जोना पैलिसिडा 1, जोना पैलिसिडा 2 एंड जोना पैलिसिडा 3। तो 3 तरह के आपके ग्लाइकोप्रोटीन मिलेंगे। दे आर बेसिकली एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड बाय द oocyte itself, तो oocyte खुद ही बनाता है। एंड दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स विल बाइंड टू द स्पर्म। तो जैसे वाइटलिन एनवेलप यहाँ पे बाइंड कर रहा था बाइंडिंग के थ्रू, वैसे यहाँ पे क्या है, GP1, GP2, GP3 है। ठीक है, ये बाइंड करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जब ये बाइंड करते हैं तभी एक्रोसोम रिएक्शन ट्रिगर होती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड देर इज़ वन मोर डिफरेंस। मैमल के केस में जो आप उसको पढ़ेंगे, स्पर्म को पढ़ेंगे। जैसे मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा आपको बताऊँ, जैसे मान लीजिए ये एग है, तो स्पर्म इस तरह से कांटेक्ट करता है एग को, और अगर हम यहाँ देखेंगे ये टिप से ऐसे कांटेक्ट कर रहा है, तो ये भी थोड़ा सा फ़र्क है। इन केस ऑफ मैमल द स्पर्म कॉन्टैक्ट्स एग नॉट एट द टिप बट ऑन द साइड, टिप से कांटेक्ट नहीं करता है। सी अर्चिन में हमने वो कांटेक्ट कैसे पढ़ा है। और वैसे ही जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यहाँ हमने बाइंडिंग की बात करी, तो ह्यूमन स्पर्म या हम अगर सिमिलरली माउस स्पर्म की बात करें, तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ कॉल्ड इजूमो। सो इजूमो मॉलिक्यूल इज़ एक्सपोज्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द स्पर्म। एक्रोसोम रिएक्शन के बाद यहाँ पे बाइंडिंग एक्सपोज हो रहा था ना, यहाँ इजूमो होगा, मॉलिक्यूल का नाम याद रखिएगा। और एग सरफेस पे इसके लिए जो रिसेप्टर होता है, दैट इजूमो कहाँ पे है, स्पर्म के पास है, और एग के पास क्या है, जो इजूमो से बाइंड होने वाला रिसेप्टर, दैट इज़ कॉल्ड CD9। So just remember that is the only difference, okay? और upon fertilization again cortical granule reaction will be triggered which is similar, कैल्शियम जो है इंक्रीज होगा तो उससे वो सारा जो रिएक्शन है वो ट्रिगर हो जाएगा। So that is it for today. I hope you enjoyed the lecture, आपको कुछ समझ आया हो। So for today फर्टिलाइजेशन के जितने भी इवेंट इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर फिर भी इफ़ देयर इज़ समथिंग लैकिंग एंड इफ़ यू फील लाइक यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन, feel free to comment down if you have any suggestion, and if you like the session, like this video and subscribe to the channel to support it and share it with your friends also. So thank you so much for joining the lecture with me. I will be seeing you all in the next video lecture.